सर, और किसी को ज्वाइन करना है और शैल वी स्टार्ट? Is everyone present here? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 students. So is that all? Madhu ma'am, is that all? 7 students? Yes, sir. Okay. So students, we'll be covering all the topics of quantitative aptitude and reasoning, right? So first, today we'll start with the basic topic, that is number system. It is a topic of quantitative aptitude, right? I hope I am clearly audible to you. Yes, sir. All right, so students, number system further comprises of many topics. Okay, first of all, are you all familiar with Hindi? Can I be bilingual or I should take the class in English only? Anyone who doesn't know Hindi? Everyone. Yeah, anyone who doesn't know Hindi? सबको हिंदी आती है? ठीक है. So I'll be taking the class in both the languages, either in English or in Hindi. जब दो लैंग्वेज मिल जाती है ना तो कंफर्ट बन जाता है. कोई कॉन्सेप्ट अगर मैं हिंदी में उतना क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ तो I'll switch to English. इंग्लिश में नहीं कर पा रहा हूँ तो I'll switch to Hindi. Okay. All right. So these are the questions of number system. We have the subtopics like divisibility, factors, unit digit, remainders, factorials, HCF, LCM. These are all the subtopics of number system. So we'll start with divisibility first, right? I hope everyone's here. So we'll start with divisibility, and then this sheet would be shared to you. Ye sheet jo hai, this is for the practice in the session only, right? Ideally, this is for the practice in the session only. After this sheet, after completion of this sheet, right, maybe ऐसा हो सकता है कि इस sheet के कुछ questions रह जाएं बाद के लिए, तो आप वो बाद में कर लीजिएगा. But after completion of this sheet, you have to try the questions apart from this sheet also. This sheet is not, sufficient for practice. We just have that 10 questions for each topics in the sheet, and that are not, not enough. So you need to practice a lot. I'll share the the websites link and the books PDFs, right? Everything would be given to you. बस आपको थोड़ी मेहनत करके प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है? Okay, so this course will go on around 60 to 70 hours generally, and that depends on your intelligence also. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो तो शायद 50 घंटे में ही खत्म कर दें. अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट कम निकले तो हो सकता है 80 घंटे भी लग जाएं. लेकिन आफ्टर दिस कोर्स 60 to 70 hours that I am assuming, उसके बाद आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जिसका आप रिटर्न क्लियर ना कर पाओ, ठीक है? दैट इज माय प्रॉमिस, ठीक है? इफ यू आर practicing according to me, if you are attending all the sessions, maybe not all, but maybe 90 to 95% of these sessions are enough. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छुट्टी लेनी पड़ जाती है किसी को, but at least your attendance should be 90-95%, right? तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको ऐसा कि कोई भी कंपनी नहीं होगी जिसके रिटर्न को आप क्वालिफाई ना कर पाओ, इफ इट्स बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड ओनली, not commenting on the technical part, but I'm commenting on the aptitude part only. All right, so start करते हैं. I hope introduction काफी हो गया. धीमे धीमे और भी चीजें पता लगती रहेंगी, ठीक है? और ठीक है, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ. वीडियो वॉज ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरेक्शन,
वीडियो की इसमें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी। आई एम स्टार्टिंग विद so you must know the divisibility rule of basic numbers. Basic numbers like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। देखो ये वो बेसिक नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए आइडियली, ठीक है। इसके बाद के जो नंबर्स होते हैं उनकी डिविजिबिलिटी आप खुद ही बना सकते हो। अगर आपको इतने नंबर्स की डिविजिबिलिटी आ गई तो इसके बाद के ज्यादातर नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल आप खुद ही बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो क्वेश्चन सॉरी 2 की डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर है मान लो A B C D E F G, so how would I check that whether this is divisible by 2 or not? Yes students, I want this class to be very distractive. First check the last digit. So if G is divisible by 2, अगर first check the last digit, अगर even है तो वो 2 से divisible होगा। अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। anyone with a different definition? अच्छा, so if G is divisible by 2, then the number is divisible by 2. हाँ, ये भी मैं पूछना भूल गया कि सबको इंग्लिश तो आती है ना, सब इंग्लिश समझ पा रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, हिंदी के बारे में तो पूछ लिया मैंने, इंग्लिश के बारे में नहीं पूछा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि किसी एक ने, मुझे शायद सदानंद ने आंसर दिया था कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन, राइट। एंड मुझे शायद सुरेंद्र ने आंसर दिया था कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, देन द कंप्लीट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। दोनों में फर्क क्या है? मैं पहले सदानंद से पूछता हूँ। सदानंद, तुम्ही ने आंसर दिया था ना कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन। हाँ सर, मैंने बोला था लास्ट डिजिट should be even. divisible by 2. अब मैं तुमसे पूछूं। नहीं, मैंने बोला था should be divisible by 2. divisible by 2, ओके। तो मुझे सुरेंद्र ने पूछा, सुरेंद्र ने बोला होगा लास्ट डिजिट शुड बी इवन, राइट। सो सुरेंद्र मुझे बताओ कि इवन नंबर क्या होते हैं? अब मेरा अगला सवाल है सर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ओहो, मतलब रमेश का घर कहाँ है? सुरेश के घर के सामने। सुरेश का घर कहाँ है? रमेश के घर के सामने। समझ रहे हो ना क्या गलती की तुमने? यस सर। ठीक है, तो इवन लास्ट डिजिट शुड बी इवन इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ divisibility rule of 2, ठीक है। So the proper definition would be that last digit, I'll write here only, that the that the last digit should be divisible by 2, right? This is the proper definition of divisibility rule of 2. Okay, quickly move to the divisibility rule of 3. What would be the divisibility rule of 3? Sir, the sum of the digits, if the sum of the digits is divisible by 3, yes, then the number will be divisible exactly. So okay, तुम में से किसी ने पहले एप्टीट्यूड पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत? यस सर। कहाँ पे, कैसे? सर लैटरल एंट्री के लिए। लेटरल एंट्री के लिए, ओके। एंड अदर्स? यहाँ पे कुछ साइलेंट लोग भी हैं, विभोर, तनेश, प्रतीक। There used to be school test of aptitude, so that's where we mainly read our maths Olympiads. ओके, तो थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा हुआ है। ओके, कोई ऐसा जो पहली बार देख रहा है ऐसी चीजें? डिविजिबिलिटी ये कहाँ से आ गई? ऑलराइट, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंदाजा है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कहता है कि if the sum of the digits is divisible by 3, then the complete number is also divisible by 3. For example, if I have to check
on this number, then whatever the sum of digits is, a plus b plus c plus d plus e plus f plus g, right? So this sum should be divisible by 3. Okay, for example, let me take a numerical example. So let's say there's a number 21573. Okay, I want to know whether this is divisible by 3 or not. So I'll add all the digits. So 2 plus 1 plus 5 plus 7 plus 3. So 2 plus 1 is 3 plus 5 is 8 plus 7 is 15 plus 3 is 18. So is 18 divisible by 3? Yes. Then this number is also divisible by 3. Is this clear, students? Yes, sir. Right. Students, if I say anything, if I say a line, if I say a statement and you don't get it, so tell me at that instant only. ठीक है, वेट मत करना कि बाद में समझ आ जाएगा, उसी समय बताना. ठीक है, डोंट वेट. ठीक है, अपनी डाउट्स, मैं जो भी पढ़ाता जा रहा हूं अपनी डाउट्स को वहीं पे क्लियर करते जाओ, और चैट में भी टाइप करने का टाइम वेस्ट मत करना, सीधे अनम्यूट करना और मुझे बताना. ठीक है, वी डोंट हैव सो लार्ज क्राउड कि मुझे कि तुम लोग अनम्यूट करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत लगे, तुम्हें कोई भी हेजिटेशन लगे. ओके, राइट. सो थोड़ा थोड़ा लिखते जाना, ऐसे करके एक साइड में ऐसे 2 3 4 5 करके 13 तक बना लो, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखते जाना. जैसे मैंने 2 के सामने लिखा है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2. 3 के सामने मैं लिखूंगा सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी लिखते जाना. अच्छा, व्हाट वुड बी द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? Last 2 digits should be divisible by 4. Yes, Vibhor, correct. As I said in the divisibility rule of 2, that last digit should be divisible by 2. So in the divisibility rule of 4, last two digits should be divisible by 4. Okay, for example, I take a number 21586. okay, this is a number. I want to check whether it is divisible by 4 or not, so I just have to check the last 2 digits, right? And there's a reason behind it. Anyone who can give me a reason why only last 2 digits are checked in the case of 4? Yes, students, anyone who can Sir, on every Sir, because majority of multiples of 4 are in two digits. No, we don't talk about majority in mathematics. या majority और minority की बात नहीं होती है कि ज्यादातर ऐसा होता है तो ऐसा होगा ही होगा. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. The rule must be perfect. Sir, every multiple of 100 is divisible by 4. That's why we Yes, check this only is the the last perfect. This is the perfect explanation. Because ये जो 21586 है, can I write it like 21500 plus 86? Right, students? And this number 21500 will always divisible by 4 because it is a multiple of 100. Yes, sir. Right, students? Yes, sir. So we don't have to care about this part. This part will always be divisible. So we just have to check for this part. If this is divisible, then the complete number is divisible. If this is not divisible, the complete number is not divisible. That's it. Okay. Right, students, everyone understanding this? Yes, sir. If there's any doubt, I'm saying it again and again. देखो, कुछ समय बाद तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस किस को समझ आ जाती हैं जल्दी चीजें, किस किस को नहीं आती हैं, बट इनिशियली तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि क्या तुम्हें समझ आ गए हैं या नहीं आए हैं. देव भरतवाल, वी हैव समवन इन द वेटिंग रूम, जस्ट जॉइन. देव भरतवाल. ओके, सो इसने अभी ज्वाइन किया है, अभी भी पूरी तरह से ज्वाइन नहीं किया. ऑल राइट, देव, कैन यू हियर मी? देव भरतवाल.
Sir, हाँ जी, sir, this is Pratik only. I have joined it from the computer. तो एक जगह से तो म्यूट कर दो, तुम्हारी आवाज Yes, yes, yes. गूंज रही है। ठीक है, ओके। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, Sir, if the last digit is 0 or 5, then it can be divisible. एग्जैक्टली लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, राइट। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यस, प्रणीत चंद्र ठाकुर, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Please tell me, if you can, the divisibility rule of 6. No, sir, I don't know. Okay. What about Pratik Bharadwaj? If हाँ, the बताइए number बताइए। is divisible by 2 and 3, If the then number, yes, exactly. If the number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. ठीक है। अगर मुझे कोई नंबर है, मान लो 1 5 7 9 2, अगर मुझे चेक करना है कि whether it is divisible by 6 or not, so first I'll check whether it is divisible by 2 or not. So 2 से check कर लिया, because last digit is 2, so it is divisible. Now I'll check with 3 whether it is divisible by 3 or not. So 1 plus 5 6 plus 7 13 plus 9 22 plus 2 24. So 24 is divisible by 3, therefore it is divisible by 3. Now this number is divisible by both 2 and 3, therefore it is divisible by 6. Correct? yes, sir. Okay, Yes, sir. let's go ahead. Skip the rule of 7 as for now, because 7 and 13 have almost similar rule. I'll tell the rule for 7 and 13 in the last. Okay. Now go to 8. I want Kanak Sharma to answer. Kanak, Yes, sir. can you tell me the divisibility rule of 8? If Yes, you sir. can. So if the last 3 digits are divisible by 8. Exactly. If the last 3 digits, अरे तुम तो होशियार लोग हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ। If the last 3 digits are divisible by 8, then the complete number is divisible by 8. ये पैटर्न यहीं से बनेगा। देखो, 2 के केस में हमने लास्ट डिजिट देखा था, 4 के केस में हमने लास्ट 2 डिजिट्स देखा था, तो 8 के केस में हम लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे। एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी वैसा ही है जैसा कि 4 में था। ठीक है, लास्ट 3 digits should be divisible by 8. Okay, ठीक है। तनिष्क, Yes, sir. 9 की divisibility rule. The sum of digits should be divisible by 9. Yes. Sum of digits should be divisible by 9. Same as the divisibility rule of 3. जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में हम देख रहे थे सम करके कि ये सम जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, वैसे ही हम 9 के केस में 9 से डिविजिबल है या नहीं देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे 5 1 3 5, ये नंबर को मुझे चेक करना है whether it is divisible by 9 or not. So I'll add 5 plus 1 plus 3 plus 5 is 14. So is 14 divisible by 9? No. Then this number is also not divisible by 9, right? Okay, so 9 ka divisibility rule is same as 3, sum of digits divisible by 9. Okay, अब ये सबसे टफ वाला रूल कौन बताएगा मुझे? 10 का? सर नहीं आता। नहीं आता। Sir, if the number is number ending with 5 or नहीं, if the number is ending with 0. अरे और क्या? if सदानंद, मतलब मुझे लगा तुम मजाक में कह रहे हो नहीं आता। नहीं सर, मैंने नहीं बोला आंसर। लास्ट डिजिट 0 है तो सर डिविजिबल है। सर मैंने बोला सर, प्रतीक ने। अच्छा अच्छा, नहीं किसी ने मुझे नहीं आता बोला था ना। हाँ सर, वो मैंने ही बोला था, वो मैंने मजाक में बोला था। हाँ,
तो सिंपल है, लास्ट डिजिट शुड बी 0, दैट्स इट, लास्ट डिजिट शुड बी 0. ओके, नाउ 11, दिस इज टफ. ठीक है, अभी थोड़े से टफ स्टार्ट हो रहे हैं. तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कौन बताएगा? सर अगर स्टार्टिंग से जस्ट इन केस अगर कोई नंबर है हमारे पास 1 2 3 और उसके बाद 2 1 लास्ट में, 1 2 3 2 1, ठीक है. तो इट विल बी डिविजिबल बाय 11 बिकॉज नहीं, इसके अंदर अगर नहीं, 1 2 3 इंक्रीजिंग है और वापस ही वही एक तरह से नहीं, पैलिंड्रोम है. नहीं, तो ये तो होंगे डिविजिबल बाय 11, बट इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको जनरली चेक किया जा सकता है. कोई और बताएगा मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? Sir, the digits at the odd places and उनका sum and the digits at the even places उनका sum, उनका अगर difference 11 is 0 आता है तो हमारा number divisible होता है 11 से. दिस इज द करेक्ट रूल. क्या करते हैं हम कि कोई एक नंबर लेते हैं जैसे A B C D E, और इसके ना हम ऑड प्लेसेस एक तरफ सम कर लेते हैं, जो भी हैं ऑल्टरनेट प्लेसेस. तो हम A प्लस C प्लस E एक तरफ कर लेंगे और B प्लस D एक तरफ कर लेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे. तो जो डिफरेंस है, जो भी यहाँ पे आएगा डिफरेंस होके, अगर वो 0 है, 11 है, 22 है, 33 है एंड सो ऑन, कुछ भी है, प्लस माइनस इग्नोर कर देना, इसीलिए मैंने डिफरेंस लिखा है, सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा. प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये वाला पार्ट इधर भी लिख सकते थे, ये वाला पार्ट इधर भी लिख सकते थे, ठीक है. पर अगर ये 0, 11, 22, 33 या कोई भी मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तो ये जो बड़ा वाला नंबर है, दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज इट इज नॉट. ओके, ठीक है, एक एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं. मैंने रैंडमली अगर कोई नंबर लिखा 2 4 6 8 1 5 7, ठीक है. तो इफ आई वांट टू चेक वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, तो मैं 2 + 6 + 1 + 7 एक तरफ कर लूंगा एंड 4 + 8 + 5 एक तरफ कर लूंगा. So 2 + 6 is 8, + 1 is 9, + 7 is 16. Now 4 + 8 is 12, + 5 is 17. Difference is 1. So is 1 divisible by 11? No. Then this number is also not divisible by 11. ठीक है. अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 होता, सॉरी, अगर यहाँ पे 5 की जगह 4 होता, ठीक है, सो हमें यहाँ पे 4 मिलता 5 की जगह, और हमारा यहाँ पे जो नंबर आता वो 16 आता, तब यहाँ पे जो नंबर आता वो 0 आता. देन आई वुड हैव सेड दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. करेक्ट स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस? Yes sir, got it. Anyone having any doubt in this? No sir. ठीक, लेट्स गो अहेड. इसको अपने भाषा में जैसे लिखना चाहो लिख लेना, लेकिन लिख जरूर लेना वरना भूल जाओगे, ठीक है. ऐसे लिख लेना कुछ alternate digits sum at one place, then difference, then divisible by 11. ठीक है, 12 पे चलते हैं. what can be the divisibility rule of 12? सर अगर उनका सम मल्टीपल ऑफ 3 होता है एंड द लास्ट 2 digits आर डिविजिबल बाय 4. हाँ, तो सिंपली बोलो ना, the number should be divisible by 3 and 4. the number should be divisible by 3 and 4. ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर. बाकी सारे स्टूडेंट्स कोई डाउट? No sir. आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट हाँ, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है. I am saying that the number which is divisible by 3 and 4 is divisible by 12. Yes प्रतीक, कुछ कह रहे हो? No sir. Okay. तो मैं अगर ये बोलता हूं कि कोई नंबर 2 और 6 से डिविजिबल हो, तो वो 12 से डिविजिबल क्यों नहीं है? 6 is not a prime number. 6 is not a prime number, so neither is 4.
सर बट अगर कोई चीज 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी तो डिविजिबल एग्जैक्टली क्योंकि दिस इज नॉट, दीज आर नॉट डिफरेंट नंबर्स, ये नंबर अलग ही नहीं है भाई। 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए भी तो आप 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे, ठीक है। तो ये हो गया रूल कि अगर 6 से डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर, व्हाई वी हैव टेकन 3 and 4? It is because they are the pairs of co-prime numbers. They don't have any common factors. इसको प्राइम नहीं कहते, इनको को-प्राइम कहते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनको को-प्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 and 15, 8 और 15 में से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। Neither 8 is prime nor 15 is prime, but both are co-prime to each other. Co-prime means they don't have any common factor. हाँ जी students, any doubt? Any doubt in this? No sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, so अब बचते हैं divisibility rule of 7 and 13, which are exactly same. ओके, लेट मी एक्सप्लेन। किसी को पता है, कोई आइडिया है 7 and 13 का डिविजिबिलिटी रूल? थोड़ा सा आइडिया है सर। बताओ। तो सर 7 का रूल है वो, उसमें शायद ये होता है कि अगर हम उसकी लास्ट डिजिट रिमूव करते हैं और उसको डबल करते हैं और उसको जो पूरा नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वो डिविजिबल होता है 1 से तो शायद डिविजिबल हो जाता है नंबर पूरा। ओके, देखो देयर आर मेनी रूल्स जो कि बने हैं 7 और 13 की और भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है। बट जो मुझे पता है वो ये है कि देखो बड़ा नंबर, आई डोंट नो कि हम 3 डिजिट के नंबर पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट हम बड़े नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, 7 and 13 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल, अगर इतना बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड से ना 3 के पेयर्स बनाएंगे। जैसे HIJ would be 1 pair, EFG would be 1 pair, BCD would be 1 pair, and A would be 1 pair. We can write it as 00A. Okay. अब जो काम हम 11 की डिविजिबिलिटी में इंडिविजुअल डिजिट्स पे कर रहे थे, सेम काम हमें करना है यहाँ पे पेयर्स पे, ग्रुप्स पे, ठीक है। तो करना क्या है कि we have to add A plus EFG on one side and we have to add BCD plus HIJ on other side as it is. Okay, now we have to take the difference, and whatever the difference is, if it is, see, whatever the difference is, if it is 0, 7, 14 or any of the multiple of 7, then this number is divisible by 7. Then this number is divisible by 7. And if this number is 0, 13, 26 and so on, then this number is divisible by 13. And if it is not among these, then it is not divisible by 13, right? Now this tells us one more thing, that if the number is 0, if this number is 0, then it is divisible by 7 and 13 both. Okay, let's take an example. Let's take an example. I'll write a random number 2, 4, 1, 5, 6, 7, 0, 8, 9, 2, 3. Okay. Now what I need to do is I need to take the pairs from right side. Obviously everything is done from unit digit only.
Yes. So 923 would be the first pair. 708 would be the second. 156 would be the third. And 024 would be the third pair. So I'll add 24 plus 708 on one side and 156 plus 923 on the other side. ठीक है students, I hope कि आपको समझ आ रहा है यहाँ तक. So this will be 732. This will be how much? 1089. ठीक है ना, सही किया ना मैंने? And then the 7-9 होगा ना? 10, yes. 2 + 5 है. 7-9. Okay, so it would be 1079. Now take the difference of these two. So this would be 3. How much the difference would be? 47. 347. ठीक है? ठीक है? तो अब हम चेक करेंगे कि whether 347 is divisible by 7 or not. इसको काट के देखेंगे हम. तो this would not be divisible by 7. So this complete number is also not divisible by 7. Now let's check with 13. तो यहाँ से 13 में 87 is also not divisible. 13 से भी ये divisible नहीं आ रहा. So it is not divisible by 13 either. Okay? तो इस तरह से चेक किया जाता है. I hope एग्जाम्पल समझ आ गया सबको. ठीक है, ये वाला नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल आता. ये वाला 7 से डिविजिबल नहीं है, पूरा नंबर नहीं है. सेम इज द केस विद 30. ठीक है, एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे बढ़े. Yes sir. ओके, अभी मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस पे आप लोग सारी डिविजिबिलिटीज चेक कीजिए from 2 to 13. Okay, I'll write a random number 18929247116. All right, 18929247116. कितने डिजिट हो गए? 11. ठीक है, आप इस नंबर पे 2 से लेके 13 तक सारे डिविजिबिलिटी रूल्स लगा के चेक कीजिए whether it is coming divisible or not, एंड मैसेज में मुझे आंसर दीजिएगा जिस नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है. ओनली सेंड मी दोज नंबर्स बाय विच इट इज डिविजिबल. ठीक है.
Yes, Tanishq, I think you are correct. Yes, Sadanand, correct. Only Tanishq and Sadanand have given me the answer. Surinder, what is this? Your answer is incorrect. Partially correct. Means there are more numbers by which it would be divisible. Yes, Kanak, correct. Yes, Praneeth, correct. Okay, I think most of you have done. So let me open the answer. It is divisible by 2, 4, and 13. Anyone having any doubt in checking with any of the number? किसी नंबर से चेक करते में किसी को भी कोई डाउट हुई हो, कुछ पूछना हो डिविजिबिलिटी में तो पूछ लीजिए. ठीक है, तो I hope everything is clear till this point. Let's move to the questions. Let's try some of the questions. Then we can move to the next topic. Okay, so these are the questions of divisibility. I'll just erase the other topics. Okay, so this says yes, start from question number 1. Question number 2 also you can do, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, apart from 10, rest of the question you can do now. Okay, and for these 9 questions you should not take more than 20 minutes. Okay, 20 minutes are more than sufficient to do these questions. But I should skip some of these because we have to complete one more topic after this. So you can skip this.
You can skip this also and this also. Okay, so you just have to do 1, 2, 3, 4, 5, and 9. 6 questions. For this 6 question, you should not take more than 12 minutes. Send me the answers on messages with numbers. Like one answer is A or X or something. Send me the answers like this on messages. Yes, Sadanand, first is correct. Yes, Vibhor, first is correct. Yes, Vibhor, second is also correct. Yes, Vibhor, third is also correct. मुझे सिर्फ सदानंद और विभोर से ही आंसर्स क्यों मिल रहे हैं भाई? कनक, प्रणीत, रोहित, तनिष्क, कहाँ गए तुम्हारे आंसर्स? क्या हुआ? पहला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो बता दो. Yes, Sadanand, third is correct, but partial correct है ना? Sadanand, you have to give both the numbers, two nearest numbers. Okay, so let me start solving the question number 1 because मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को question number 1 आ नहीं रहा. Okay, so question number 1 says if n is divided by 8, the remainder is 3. If n is divided by 8, the remainder is 3. So can I write n as 8 into some number plus 3? 8 into some number plus 3. कोई है जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है? 8 into, if n is divided by 8, the remainder is 3, then n can be written as 8 into some number plus 3. Okay? अब 6n का रिमाइंडर चाहिए तो 6n would be 48k plus 18. यही होगा 48k plus 18. ठीक है. अब इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं 48k plus 16 plus 2 में. तो this part will be divisible by 8. This part will be divisible by 8. Right, so remainder would be 2. कोई है जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए. अभी तक हो जाने चाहिए थे 3 क्वेश्चंस तो लगभग हो जाने चाहिए थे.
कनक क्या हुआ, कोई दिक्कत? कनक शर्मा यस सर, कोई दिक्कत? सर कर रहे हैं। तो हाँ मतलब देखो, बताओ मुझे, अगर दिक्कत आ रही है तो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस को, अगर कर रहे हो तो कर रहे हैं आंसर्स दो। यस तनिष्क तुम्हारा सेकंड सही है, विभोर तुम्हारा हाँ फोर्थ सही है। I'll just be back in a minute, students. तनिष्क फोर्थ का आंसर कहाँ भेजा तुमने? हेलो हाँ सुरेंद्र बताओ। सर, सेकंड का है 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहे हो, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर? सर डिविजिबल बाय 4 अरे एंड तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो? मिस्टेक हो गया था। They are asking us कि if what is the remainder when this is divided by 4? This will have only one answer, right? सॉरी And answers message पे ही भेजो मुझे, ठीक है? Let me solve second question. Second question says 2n plus 2 का होल स्क्वायर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो फर्स्ट एक्सपेंड दिस बाय द फॉर्मूला ऑफ a plus b होल स्क्वायर. So this would be 4n square plus 4 plus 2 into 2 into 2 n 8n divided by 4, right? So if 4n square plus 4 plus 8n is divided by 4, then the remainder would be 0. तीनों में तो 4 है ना, तीनों ही मल्टीपल है 4 के, तो रिमाइंडर वुड बी 0. सिंपल, ठीक है? यस विभोर, योर आंसर फॉर 9th इज करेक्ट. अच्छा, मीनवाइल ना मैं क्या करता हूं कि तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये शीट डाल देता हूं, तो उससे ये होगा कि तुम मीनवाइल बाकी के आंसर्स भी कर लोगे, बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो. यस तनिष्क, फोर्थ का आंसर तुम्हारा सही है. सदानंद, 9th का आंसर तुम्हारा गलत है. 5 का आंसर सही है. सदानंद तुम्हारा 5th का आंसर सही है, 9th का गलत है. तनिष्क तुम्हारा 9th का आंसर गलत है.
सर फिफ्थ वाला समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बताता हूँ। कनक, तुम्हारा थर्ड का आंसर पार्शियली, पहला नंबर सही है, दूसरा नंबर गलत है। यस तनिष्क, तुम्हारा नाइन्थ का आंसर अब सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने व्हाट्सएप पे शीट भी भेज दी है, 1 आध मिनट में मिल रही होगी तुम्हें। तो तुम जिसने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए वो शीट में से बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकता है। रेड लाइन ओके। सदानंद, नाइन्थ का आंसर तुम्हारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सदानंद पूछो। जैसे इसमें दिया हुआ है ना, व्हाट इज द नेक्स्ट लार्ज, अच्छा लार्जर मतलब लार्जेस्ट है या वो लार्जर है? बस लार्जर है और क्या? मेरे को वो लार्जेस्ट कैसे बता सकते हो? लार्जेस्ट तो इन्फिनिटी होगा। इन ऑप्शंस में से सर तो फिर तो 2n होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट लार्जर पूछा है ना। हाँ लार्जर, मेरे को लगा लार्जेस्ट लिखा होगा वहां पे। अरे लार्जेस्ट है तब भी 2n नहीं होगा। हाँ सर 2n ही तो होगा। नहीं होगा। लार्जेस्ट अगर होता है, लार्जेस्ट अगर होता है यहाँ अच्छा पे, नेक्स्ट लार्जेस्ट फिर नहीं होगा। अच्छा सर ओके सर। नेक्स्ट लार्जेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं ना, वर्ड ही हाँ नहीं सर, बन रहा। तो 19506 के आसपास दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 9 से डिविजिबल हों। यस विभोर, फिफ्थ का आंसर सही है। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो डिजिट्स को, 1 + 9 + 5 + 0 + 6। 1 + 9 is 10 + 5 is 15 + 6 is 21. 21 is not divisible by 9, that is correct. बट अगर 21 में +6 करेंगे या -3 करेंगे तो डिविजिबल बाय 9 बन जाएगा। तो 19506 में +6 करेंगे तो नंबर आएगा 19512। देख सकते हो कि 19512 विल बी डिविजिबल बाय 9। और 19506 में -3 करेंगे तो आएगा 19503 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज टू बी डन। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से इजी है, सबका हो जाना चाहिए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक हो जाना चाहिए था। आंसर शुड बी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर शुड बी 6 and 4। कौन कौन है जिसको नहीं आया है ये आंसर, ये क्वेश्चन? विभोर 6th, अच्छा तुमने अपार्ट फ्रॉम द शीट सॉल्व कर रहे हो तुम। 6th
इसमें है नहीं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है, तो मैं अभी आंसर तो नहीं बता पाऊंगा, तुम सॉल्व कर लो, मैं आंसर्स तो बाद में ही बता पाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है, पूछो। Okay, so I assume that question number 4 is done. So we move to question number 5. Question number 5 में ट्रेंड देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो। अगर प्रॉपर तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो एक पैटर्न महसूस कर सकते हो। पैटर्न as in this question is saying sum of the digits of a number when subtracted from a 3-digit number. तो सबसे छोटा 3-digit नंबर लो 100। इस नंबर में से जब इसके डिजिट्स का सम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब इसके डिजिट्स का सम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर बड़े से बड़े किस नंबर से डिविजिबल होगा, राइट। बट यहां पे मुझे पैटर्न देखना है, तो मुझे हर वो नंबर चाहिए, ठीक है, जिससे वो नंबर डिविजिबल आएगा। तो 100 - 1 दिस वुड बी 99, ठीक है। 99 इज डिविजिबल बाय 9, 11, 11 एंड 9, राइट। अब कोई रैंडमली ऐसी नंबर लेके देखो, 200 ले लिया मान लो, तो 200 में से 200 हटा दो तो अगेन आता है 198, ठीक है। सो दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 9 एंड 11, राइट। तो इस पैटर्न से मुझे लग रहा है कि आंसर मेरा 11 हो सकता है, ठीक है। बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जिससे 3 डिजिट के नंबर में से सम ऑफ डिजिट सब्ट्रैक्ट करें तो डिविजिबल आए, कैन बी 11, ठीक है। अब कोई और ऐसा नंबर लेते हैं, मान लो मैंने लिया 165, माइनस किया इसमें से 1 + 6 + 5, 12 माइनस हुआ, तो दिस वुड बी हाउ मच, 153। तो 153 अब शायद 11 से डिविजिबल नहीं है, राइट, बट ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल आ रहा है, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल आ रहा है। चाहो तो एक आध और चेक कर सकते हो, बट यहां तक से मुझे ये समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर है 9, जिससे हमेशा डिविजिबल आएगा अगर हम एक नंबर में से उसके डिजिट्स का सम माइनस कर दें तो, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ट्रेडिशनली भी जो उसका ट्रेडिशनल मेथड होगा बिना हिट एंड ट्रायल किए, वो भी कर सकते हैं हम। मान लो एक नंबर की यूनिट डिजिट है x, टेंस डिजिट है y एंड हंड्रेड्स डिजिट है z, ठीक है। तो वो नंबर कैसे फॉर्म होगा, नंबर फॉर्म होगा z × 100 प्लस y × 10 प्लस x × 1 करके, ऐसे ही तो नंबर फॉर्म होगा। अरे कोई हाँ ना कुछ तो बोलो। मान लो अगर मैंने कहा कि एक नंबर की यूनिट डिजिट है 3, टेंस डिजिट है 5 और 100 डिजिट है 6, तो मैं उस नंबर को 653 को कैसे बनाऊंगा मैथमेटिकली, 600 + 50 + 3 करके ही तो बनाऊंगा। Yes, sir. हाँ, तो इस नंबर में से जब इसके सम ऑफ डिजिट्स माइनस करेंगे, जब हम x + y + z माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा पूरी तरह, 10y - y 9y बचेगा, और 100z - z 99z बचेगा। तो ये कुछ ऐसा नंबर बचेगा। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच लार्जेस्ट नंबर, so your answer should be 9. This number is divisible by largest number 9. All right, question number 9.
अभी कुछ लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 या बताऊं? किसी और को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का, या फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं? आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। यस, आंसर वुड बी n + 60। देखो स्टूडेंट्स, ट्राई किया करो क्वेश्चंस को। मैं एक्सप्लेन करूंगा और तुम सुनोगे, ये तो बहुत आसान चीज है, ठीक है? मेरे को अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी है, पर ट्राई किया करो थोड़ा क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज if an integer n is divisible by 3, 5 and 12। तो सबसे पहले तो वो इंटीजर्स, वो पैटर्न ढूंढते हैं, वो लिस्ट ढूंढते हैं जिसमें नंबर्स 3, 5 और 12 से डिविजिबल हों। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 3, 5 और 12 से डिविजिबल होगा वुड बी दी एलसीएम ऑफ 3, 5 and 12। करेक्ट? सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि 3, 5 और 12 से डिविजिबल होगा, that would be the LCM of 3, 5 and 12, and that would be equal to 60। तो 60 पहला नंबर है जो 3, 5 और 12 से डिविजिबल है। अगला नंबर हो जाएगा 120, उससे अगला हो जाएगा 180, उससे अगला हो जाएगा 240 and so on। This pattern will continue till infinity, right? Now, अब यहाँ पे ना उसने कहा है कि if n is a number divisible by these numbers, उसने ये नहीं कहा कि n is the smallest number which is divisible by these। तो अगर n ऐसा नंबर है जो 3, 5 and 12 से डिविजिबल है, तो n इनमें से कोई भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक इनमें से n कोई भी हो सकता है। और अगर इन्फिनिटी तक n में से कोई भी होगा, तो उससे अगला नंबर कैसे आएगा? विच इज द नेक्स्ट लार्जर नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। तो अगर देखो, ऑब्वियसली अगर n सबसे छोटा नंबर होता, तो जो अगला नंबर है वो 2n करके भी आ जाता और n + 60 करके भी आ जाता। लेकिन तुम्हें पता नहीं है ना कि n सबसे छोटा वाला ही नंबर है, तो तुम्हें रैंडमली कोई भी नंबर पिक करना पड़ेगा। मान लो मैंने 250 पिक किया, 240 पिक किया, तो अगला नंबर अब कैसे आएगा? अगला नंबर आएगा n + 60 करके। सो 2n वुड बी द रॉन्ग आंसर, n + 60 वुड बी द राइट आंसर। हाँ जी, बोलिए, क्या ये समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 7, विभोर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। सर एक बार वही ट्राई कर रहा हूँ दोबारा। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट्स, सो दोज हु हैव डन दीस 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस आर आल्सो रिमेनिंग स्टिल इन द शीट, तो वो आप बाद में ट्राई कर लेना। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है? हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, आप बाद में ट्राई कीजिएगा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो बीच बीच में छूट गए। और उसके अलावा भी आपको मैं लिंक्स दूंगा, पीडीएफ दूंगा, उससे क्वेश्चंस ट्राई करने की जरूरत होगी। प्रैक्टिस तो बहुत ही रिक्वायर्ड होगी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी, विभोर तुम कर लोगे, इनफैक्ट सारे लोग कर लेने चाहिए, ठीक है? तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूनिट डिजिट, ठीक है? सो एज ऑफ नाउ डिविजिबिलिटी इज क्लोज्ड, ठीक है? तो यू हैव टू कम अप विद द questions, you have to do the questions of divisibility after the class, okay? अभी हम यूनिट डिजिट पे चल रहे हैं, ठीक है? यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं।
सबका फोकस यहाँ होना चाहिए अब वापस से, ठीक है। यूनिट डिजिट सेज कि ऐसा कोई नंबर है, मान लो 2 टू द पावर 17, मुझे इसकी यूनिट डिजिट चाहिए, 2 रेज टू द पावर 17 की यूनिट डिजिट। तो कोई तरीका है आपके पास यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने का? सपोज ये हो सकता है कि 2 टू द पावर 17, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल नंबर, तो आप कैलकुलेट ही कर लो, बिकॉज आपको पता है 2 टू द पावर 8 वुड बी 512, ठीक है। 2 टू द पावर 8 512 होगा ना? नहीं, 2 टू द पावर 9 512 होगा, बट स्टिल जैसे आप 2 टू द पावर आपको 2 टू द पावर आपको 5 पता है, 6 पता है, 64 होता है, तो ऐसे आप 64 इंटू 64 इंटू 32 करके हो सकता है कि आप इसकी यूनिट डिजिट पता कर लो, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट द आइडियल वे टू सॉल्व द यूनिट डिजिट क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे 70 की जगह 175 होता तो कैसे करते? ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते रहते पूरे टाइम, ठीक है। तो देयर शुड बी अ मेथड टू डू दिस। कोई बताएगा मुझे? किसी को कोई आइडिया है कि यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर देखते हैं कि सर कितने टाइम टू टाइम वो रिपीट हो रहा है, हाँ, मतलब जैसे हर 5 बार उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसे। ठीक है। देखो, जब भी तुम मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में अगर अटकते हो और तुम्हें लगता है कि इसमें हमें नहीं पता कैसे करना है, तो पैटर्न ढूंढा करो, हमेशा पैटर्न ढूंढा करो। क्वेश्चंस पैटर्न से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पैटर्न से हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट की बात करूं तो होती है 2 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट इज 4, 2 to the power 3 unit digit is 8, 2 to the power 4 is 16, the unit digit is 6. We just have to care about the unit digit, that's it. 2 to the power 5 is 32, unit digit is 2. 2 to the power 6 is 64, unit digit is 4, ठीक है, and so on. This will go on like this. तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है ना? 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रही है, ठीक है। तो अब आपको देखो करना क्या है। अब आपको ये पता है कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 की होगी वही 2 की पावर 5 की होगी, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 की होगी वही 2 की पावर 6 की, जो 2 की पावर 3 की होगी वही 2 की पावर 7 की, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 की होगी वही 2 की पावर 8 की, देन अगेन 2 टू द पावर 9 एंड सो ऑन। दिस विल गो ऑन लाइक दिस। स्टूडेंट्स, क्या ये समझ आ रहा है? यस सर। बाकी लोग? यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो अब देखो, आफ्टर ऑल आपको क्या करना है? आफ्टर ऑल आपको ये जो 17 पावर्स है 2 की पावर 17, इसको लोकेट ही तो करना है इन हेलो। हेलो। हाँ, किसी को नहीं आ रही आवाज अभी। सर तो निकल गए शायद। भाई तो नहीं, होस्ट बन गया। सर बोर हो गए।
रिकॉर्डिंग ऑन है। कभी कभी ऐसा एक नेटवर्क ब्लिप हो जाता है 2-3 मिनट का। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम। डिविजिबिलिटी, सॉरी, यूनिट डिजिट कर रहे थे हम। ठीक है, ओके। तो मैं बता रहा था कि अगर मुझे 2^17 टाइप किसी नंबर की यूनिट डिजिट चाहिए, सो आई जस्ट नीड टू लोकेट इट in the columns 2^2, 2^3, 2^, right? तो ये जो 2^17 है, this will come in the first column, correct? And if it comes in the first column, then its unit digit should be same as 2^1, which is 2. Right, students? हाँ जी, students? Yes, sir.
Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं, तब ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, सपोज आई नीड टू कैलकुलेट द यूनिट रेट ऑफ 2 to the power 83. Okay, we all know that 2 to the power 1 will have the unit rate 2, 2 to the power 2 will have the unit rate 4, 2 to the power 3 will have the unit rate 8, 2 to the power 4 will have the unit rate 6, and now the repeats will be now the unit rate would be repeated again. तो मुझे अगर 83 लोकेट करना है इन 4 कॉलम्स में, ठीक है, तो देखो लोकेट करने का एक आसान तरीका ये है कि 83 के आसपास 4 का मल्टीपल ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 4 is in the 4th column, 2 to the power 8 will also be in the 4th column, 2 to the power 12 in 4th column, 2 to the power 16 would be in the 4th column. तो जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं 2 की पावर में, वो सारे के सारे लास्ट कॉलम में ही आएंगे। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि 2 to the power 80 would be in the 4th column. ओके, अब यहां से मैं जा सकता हूं 2 to the power 83 पे, तो 81 would be in the first, 82 would be in the second, and 2 to the power 83 would be in the 3rd column. Its unit rate would be same as the unit rate of 2 to the power 3, which is 8. Okay. Yes, students, any doubt in this? No sir. No sir, not yet. ठीक है, लेकिन अब देखो, ये तो अभी मैंने जो 2 एग्जांपल्स बताए हैं वो 2 की पावर में बताए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ 7 to the power 55 लिखा होता और मैं आपसे कहता कि इसकी यूनिट रेट बताइए, तो क्या होता? तो आपको 7 के अलग से पैटर्न फाइंड करने होते, और हो सकता है कि जैसे ये 4 पावर्स के बाद रिपीट कर रही हैं यूनिट डिजिट्स, 4 पावर्स के बाद रिपीट कर रही हैं, वैसे 7 के केस में 4 पावर्स के बाद ना रिपीट करके मे बी 2 पावर्स के बाद ही करने लग जाते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि ये जो पीरियड है 4 का जिसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रही हैं, इसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी। देयर इज अ टर्म यूज्ड फॉर दिस पीरियड ऑफ 4 व्हिच इज साइक्लिसिटी। तो हम ये कहेंगे कि 2 की साइक्लिसिटी है 4। ठीक है, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि हर एक नंबर की साइक्लिसिटी 4 ही हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर नंबर की पावर्स 2 के बाद ही रिपीट करें। दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट? तो सबसे पहले तो हमें साइक्लिसिटीज कैलकुलेट करनी होंगी। हमें ये देखना होगा कि कितने पावर्स के बाद इनकी यूनिट रेट रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट साइक्लिसिटी ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the least cyclicities which are required. ठीक है, take 5 minutes and calculate the cyclicities of all these numbers. तब हम फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आराम से कर पाएंगे।
Okay. Tanishq, all your answers are right. स्टूडेंट्स, अगर आपको बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं, आपको बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अरे okay, if you are calculating the cyclicity of 8, right? So suppose 8 to the power 1 you have calculated as 8, then 8 to the power 2, 8 square, 64, unit digit is 4, right? Now students, please focus here. अगर आपको 8 क्यूब की यूनिट डिजिट चाहिए, ठीक है, तो आपको पूरे 64 को 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ऑल्दो 8 का क्यूब तुम्हें पता है क्या होता है, बट फिर भी पूरे 64 को 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही चाहिए, पूरे नंबर की सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो वो तो 4 into 8 करके भी आ सकती है ना. ठीक है, तो this is a technique by which you can cut short your methods. तो 8 क्यूब के लिए आप 4 into 8 करोगे, 4 into 8 would be 32, यूनिट डिजिट would be 2. ठीक है, अगर 8 क्यूब भी देखोगे तो 512 आएगा, यूनिट डिजिट would be 2. तो यूनिट डिजिट के केस में सेम होगा. अब if you want to calculate the unit digit of 8 to the power 4, you don't have to multiply 32 by 8. You just have to multiply 2 by 8. So that would be 16. Unit digit would be 6. Okay. Then 8 to the power 5, 6 into 8, 48. 48. Unit digit is 8 again. तो यहां पे भी 4 के बाद रिपीट कर रही है, तो ऐसे करके आप बड़े आराम से साइक्लिसिटीज तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो जितनी साइक्लिसिटीज कर ली हैं अच्छी बात है. नाउ वी आर मूविंग अहेड. तो 3 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 4. मैं सारी साइक्लिसिटीज बता रहा हूं. ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 2, 5 की हो जाएगी 1, 6 की हो जाएगी 1, 7 की हो जाएगी 4, 8 की भी 4 और 9 की 2. 9 की 2. ठीक है, अब रैंडमली हम कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं. मान लिया मैंने 7 to the power 83 पिक करना है, ठीक है, या 7 to the power 55 पिक करना है. दिस वाज द क्वेश्चन, 7 to the power 55. सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं इनकी साइक्लिसिटी देखूंगा 7 की. तो 7 की साइक्लिसिटी है 4. इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि 7 के केस में ना 4 कॉलम्स बनेंगे. 7 to the power 1 का, 7 to the power 2 का, 7 to the power 3 का और 7 to the power 4 का. ठीक है, अब 4 कॉलम्स बनेंगे और मुझे ये पता करना है कि 7 to the power 55 किस कॉलम में आएगा. ठीक है, तो 55 के आसपास जो आपको 4 का मल्टीपल दिखे वहां से स्टार्ट कर लो. जरूरी नहीं कि 7 की पावर 56 से ही स्टार्ट करो, 7 की पावर 60 से स्टार्ट करो. ठीक है, अगर 7 की पावर 60 फोर्थ कॉलम में आएगा. ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट देखते रहना. अगर 7 की पावर 60 फोर्थ कॉलम में है तो 7 की पावर 56 भी फोर्थ कॉलम में होगा और 7 to the power 55 थर्ड कॉलम में हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से आप 55 तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली 55 लोकेट कर सकते हैं तो दैट वुड बी इवन बेटर. बट अगर नहीं लोकेट कर पा रहे हो, 4 के मल्टीपल की जरूरत पड़ रही है, तो आप 60 से स्टार्ट कर सकते हैं या 56 से स्टार्ट कर सकते हैं. इवन आप 52 से भी स्टार्ट कर सकते हैं कंपेयर करना. ठीक है, तो its unit digit would be same as the unit digit of 7 to the power 3, which is 7 का cube would be 343. Answer would be 3. Correct? I hope this is clear. Let's take one more example. Suppose we have something like 9 to the power 175. ठीक है,
सबसे पहले मैंने 9 की साइक्लिसिटी देखी तो वो आई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 की साइक्लिसिटी 2 आई, इसका मतलब देयर वुड बी ओनली 2 कॉलम, 9 टू द पावर 1 एंड 9 टू द पावर 2, देन 9 टू द पावर 3, देन 9 टू द पावर 4। तो सारे के सारे ऑड नंबर्स, सॉरी ऑड पावर्स इधर आएंगे और सारी की सारी इवन पावर्स इधर आएंगी। ठीक है, जस्ट हैव टू डिटरमाइन कि ये इवन है कि ऑड है। 175 एक ऑड पावर है, तो this will come in the first column and its unit digit would be same as the unit digit of 9 to the power 1, which is 9। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये पूरी तरह समझ आ गया? यस सर। कोई है जिसको डाउट है इसमें? ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सर यस विभोर। सर वन मोर थिंग सर, जो साइक्लिसिटी के जो आंसर्स आ रहे हैं हमारे, हाँ सर इसमें भी एक पैटर्न नहीं है, 4 4 2 1 1 एंड देन। अच्छा, ये वाला आंसर, ये वाले साइक्लिसिटीज के? यस सर। तो इसका क्या करोगे पैटर्न बना के? सर मतलब जैसे कभी किसी का याद नहीं हो या कुछ, मतलब कुछ भी नो नहीं नहीं नहीं, इतना तो तुम्हें रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद की जरूरत नहीं है। बात यह है कि अगर 10 की 11 की साइक्लिसिटीज की जरूरत होती तो हम एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते, बट इसके आगे की जरूरत है ही नहीं हमें। ठीक है, हमारा हर तरह की साइक्लिसिटी जो है वो इतने ही नंबर्स की साइक्लिसिटी से डिटरमाइन हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 3 टू द पावर 122 करो। ठीक है, देन 8 टू द पावर 243 and then 4 to the power 658. Okay, so this is the question number 1, this is the question number 2, this is the question number 3. Ideally I should be getting all the 3 answers within 1 minute. Yes, Vibhor, first is correct. Yes, Tanishq, all are correct. Prateek, first is wrong. Yes, Vibhor, third is wrong. Yes, Vibhor, now third is correct. तो मिस्टेकनली गलती से वो लिख दिया था। ठीक है, बाकी लोग, सारे लोग आंसर्स दीजिए। Prateek, second is correct. Sadanand, third is correct. Okay, question number 1, 3 to the power 122. सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लिसिटी। 3 की साइक्लिसिटी है 4। हमें पता है कि 3 के केस में 4 कॉलम बनेंगे, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 and 3 to the power 4।
Now we just have to locate, yes, we just have to locate 3 to the power 122 here. ठीक है, तो 3 to the power 120 you can easily locate, 4 का multiple in the fourth column. 3 to the power 122 would be in the second column. Its unit digit would be same as 3 to the power 2. Answer would be 9. ठीक है, यस प्रतीक, थर्ड का तुम्हारा सही. Before mute yourself. 1 second sir. Question number 2, 8 to the power 243. ठीक है, अगेन the cyclicity of 8 is 4. तो 8 के केस में भी 4 कॉलम्स ही बनेंगे, a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3 and a to the power 4. स्टूडेंट्स, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3 and a to the power 4, तो पहले से आपको यूनिट डिजिट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सबकी. ठीक है, जस्ट लोकेट 243. तो देखो 240 इधर आएगा, 8 to the power 240 would be in the fourth column. तो 8 to the power 243 would be in the third column. तो आपको सिर्फ 8 क्यूब की यूनिट डिजिट चाहिए, आपको सारी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, तो 8 क्यूब की यूनिट डिजिट वुड बी 2. आंसर, फाइनल आंसर इज 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 के केस में साइक्लिसिटी हो जाती है 2. ठीक है, तो देयर वुड बी 2 कॉलम, 1 फॉर इवन एंड 1 फॉर ऑड. ठीक है, तो ऐसे करके हम देखेंगे कि 4 to the power 658 would be in the second column. Its unit digit would be same as 4 to the power 2, which would be 6. Students, any doubt in any of the question? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. All right. Now 2 more concepts. Okay, 2 more concepts. मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा कुछ होता है कि मान लो 7 raised to the power, नहीं, मान लो ऐसा होता है कि 7, 1, 5, 8 raised to the power 25 है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पे बेस में 1 नंबर तो है नहीं, 4 नंबर है, कैसे करोगे? यस, वी विल टेक ओनली द लास्ट डिजिट. दिस इज, अगर मुझे इसकी यूनिट डिजिट चाहिए तो दिस इज इक्वलेंट टू 8 to the power 25. क्यों? क्योंकि अगर हमें लास्ट डिजिट चाहिए तो वो तो लास्ट डिजिट से ही आएगी ना. स्टूडेंट्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमें लास्ट डिजिट चाहिए तो लास्ट डिजिट से ही आएगी. मतलब बेस में चाहे कितने भी नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही कंसीडर करनी है. ठीक है, अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कुछ ऐसा लिखा हो 7 to the power 1, 2, 5, 7, 6, 9, इतना बड़ा नंबर लिखा हो तो पावर में, आप कैसे करोगे? तो भी पावर की ही लास्ट डिजिट देख लेंगे? नहीं, इस केस में पावर की लास्ट डिजिट नहीं देखेंगे. ध्यान देना कि देखो, अगर साइक्लिसिटी 4 है, सॉरी, अगर इसमें सर डिवाइड कर देंगे, जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे, और जो लास्ट मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, हाँ, उतना नंबर ऑफ टाइम्स हम देख लेंगे कि वो कहाँ लाई करेगा. ओके, अब मैं बताता हूं कि तुम्हें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, डिवीजन भी इसको अगर करोगे तो काफी बड़ा होगा. छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 4 की यूनिट डिजिट, 4 की साइक्लिसिटी है 2, तो 4 के केस में तो आपको सिर्फ इवन और ऑड देखना होगा. मतलब 4 का अगर बड़ा सा नंबर है 1, 2, 5, 7, 6, 9, इतना बड़ा नंबर है, तो आपको सिर्फ इवन और ऑड देखना है, तो ये तो हो ही जाएगा.
9 के केस में भी ऐसा ही होगा, इवन और ऑड देखना ये भी हो जाएगा। 5 और 6 के केस में कुछ देखना ही नहीं है, कुछ भी पावर हो हमेशा 5 ही आएगा या 6 ही आएगा। ये प्रॉब्लम आएगी सिर्फ जब साइक्लिसिटी 4 होगी, ठीक है ना। जैसे 7 के केस में साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ध्यान देना, अगर मुझे इसको डिवाइड करके ये देखना है कि 4 का ये 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर देता है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ ना। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? लास्ट 2 digits. तो it is only the last 2 digits that will matter in this case. Okay. सिर्फ लास्ट 2 digits की जरूरत है, that's it. ये सारी चीजें फालतू हैं, क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखना है तो वो था लास्ट 2 digits। साइक्लिसिटी अगर 4 है तो आप ये सारी चीजें इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। अगर मैं कहता हूं 7 to the power 25 की यूनिट निकालो, ठीक है, तो तुम देखोगे 7 to the power 1, 7 to the power 2, 7 to the power 3 और 7 to the power 4, 4 कॉलम्स आएंगे। तुम्हें पता है 7 to the power 25 जो है वो पहले ही कॉलम में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं 7 to the power 125 की यूनिट बताओ, तो 125 भी तो पहले ही कॉलम में आएगा। Yes, sir. अगर मैं कहता हूं 225 की यूनिट बताओ, वो भी पहले ही कॉलम में आएगा। तो सिर्फ आखिरी की 2 डिजिट मैटर करती हैं, बाकी कोई डिजिट मैटर नहीं करता है। तो अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है ऑफ द फॉर्मेट ABCD रेज टू द पावर WXYZ, ठीक है, तो मुझे बताओ प्रणीत मुझे बताओ, इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? प्रणीत सर YZ, ABCD की पावर YZ। ABCD की पावर YZ, क्यों भाई ABCD क्यों लिख रहे हो? अभी बताया ना, D की पावर YZ सर। यस, बेस में 1 नंबर, यस सर, D की पावर YZ। हाँ, बेस में 1 नंबर और पावर में 2 नंबर, दैट्स इट, ठीक है। अब तुम कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलें क्वेश्चंस पे। यस सर। ओके, कुछ पूछना है इसमें? अगर कुछ भी पूछना हो, साइक्लिसिटीज साइड में लिखे रहने देना व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है। हालांकि हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, पर फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सर ये नीचे था ना सर एक क्वेश्चन साइक्लिसिटी में, ये फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कर तो रहा हूं, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस आपको यही सब मिलेंगे, ओके ठीक है। दीज आर दी क्वेश्चंस ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कर सकते हो सॉल्व? 2 क्वेश्चंस करके देखते हैं कम से कम। वी हैव 3 मिनट्स और थोड़ा 1-2 मिनट तक एक्सटेंड कर ही सकते हैं, तो 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। One and 4. सर फर्स्ट का 1 है। सर फर्स्ट का 5 है ना 1 है। आई डोंट थिंक कि 1 और 5 में से कोई भी आंसर है। दिख तो रहा है ना ये क्वेश्चन तुम्हें, 7 to the power 95 माइनस 3 to the power 58 है। सर 4
एक सेकंड भाई रुक जाओ। सर -6। माइनस में नहीं होता आंसर। किसी ने मुझे 4 कहा था, वो करेक्ट आंसर है। देखो 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, इसकी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करोगे तो आएगी 3, और इसकी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9। ठीक है, अब हालांकि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, बट देखो दीज आर ओनली द यूनिट डिजिट, राइट। ओवरऑल तो ये नंबर बहुत बड़ा और ये नंबर काफी छोटा होगा कंपैरेटिवली, राइट स्टूडेंट्स। ओवरऑल 7 टू द पावर 95 काफी बड़ा नंबर होगा 3 टू द पावर 58 से। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं A B C D 3 और X Y 9 का, तो कैसे करते हैं? ओके सर, एक कैरी लेके मतलब 13 - 9 हो जाएगा ये। हाँ एग्जैक्टली, एक कैरी करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना ये नंबर बड़ा है ऊपर वाला, ये नंबर छोटा है, हमें डेफिनेटली पता है। ठीक है, तो कैरी लेंगे 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे 9, सो 3 - 9 को हम 13 - 9 लिख सकते हैं, एंड 4 वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 करो। Rightmost non-zero digit of 30 raised to the power 2720. So 9. 9 नहीं, Sir, 1. 1 is the correct answer. देखो जब भी तुम्हें इतना बड़े नंबर पे ना सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, तो खुद ही नंबर छोटा कर लिया करो। अगर मैं 30 का क्यूब यहां पे लिखता हूं और उसकी राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट पूछता हूं तुमसे, ठीक है, तो 30 का क्यूब हो जाएगा 27,000, और इसकी राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी होगी? 27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सॉरी ओनली 7, तो ये जो 7 है वो कैसे आएगी? वो 3 क्यूब की यूनिट डिजिट से ही तो आएगी। समझ आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर Yes, मुझे, हाँ कोई है जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो आफ्टर सर ये ऑल वाला नहीं आया। ये वाला नहीं आया, हाँ एक बार और मैं बताता हूं। मैंने ये बोला कि इसकी मुझे राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट चाहिए। ठीक है प्रणीत, अनम्यूट करो, यस सर, मुझे यस सर। एक एक पॉइंट पे बताना। तो मैंने कहा कि मैं पहले ये वाला ना सिर्फ पावर 3 लेके सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन। तो मैंने 30 की पावर 3 लिख लिया, तो उसका आंसर आया 27,000। 30 क्यूब का आंसर 27,000 आ जाएगा। अब यस, मुझे बताओ इसकी राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? 7। 7 है, तो ये जो 7 है ये तो 3 क्यूब से ही आई है ना। ये जो 7 है ये तो 3 क्यूब से ही आई है ना। ठीक है प्रणीत? ओके सर, ओके। ओके, तो इसमें अगर मुझे राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट चाहिए तो मुझे 3 की पावर 2720 की यूनिट डिजिट चाहिए, दैट्स इट। ओके ठीक है, चलो इसके बाकी के क्वेश्चंस कर लेना, तुम्हारे पास शीट ऑलरेडी पहुंच चुकी है। प्रतीक इसका आंसर 3 नहीं है। अब इतना भी मत करवाओ कि 3 की पावर 2720 की यूनिट डिजिट, इसको फिर से चेंज करके 3 की पावर 20 कर लो। अब इसकी यूनिट डिजिट तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो कर लीजिएगा।
ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूँ सेम टाइम पे प्रोबेबली। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर मैं ये क्लास 1 से 3 शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा आधा घंटे पीछे खींच लूं, तो किसी को प्रॉब्लम? नो सर। एक्चुअली क्या है कि मेरी ना 4 बजे से अगली क्लास होती है और मेरे पास सिर्फ आधा ही घंटा है खाना खाने के लिए, तो कभी कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होता है तो मैं 5-10 मिनट एक्सटेंड नहीं कर पाता हूँ, मतलब कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो प्रोबेबली कल जो है वो थोड़ा सा पीछे खींचेगी क्लास और 1 से 3 रहेगी। ठीक है, आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना 1 से 3 टाइमिंग में। सर। चलो ठीक है, तो सी यू टुमारो, बाय बाय। सर इसका आंसर Thank you, दो sir. है ना? इसका आंसर 1 होगा भाई, इतना ओके आंसर ओके ओके 1 होगा और क्या। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।